Bismillahirrahmanirrahim. Today I will discuss traumatic brain injury. My main focus will be on the secondary brain injuries with its medical management. Overview: traumatic brain injury is an insult to the brain from an external mechanical force potentially leading to an altered level of consciousness and permanent or temporary impairment of cognitive, physical or psychosocial functions. Traumatic brain injury accounts for more than 30% of trauma deaths and is the leading cause of disability in the people under 40 years. It is usually bimodally distributed with the young adult males and elderly. Causes of traumatic brain injury include falls, motor vehicle collisions, violence and assault, industrial accidents, sports. We should always consider non-traumatic injuries in children, elder abuse and domestic violence. Primary brain injury usually occurs at the time of traumatic incident. Mechanisms include impact loading, collision of head with a solid object at a tangible speed, contact forces, impulsive loading, sudden motion without significant physical contact, inertial forces or acceleration deceleration injury, static loading in which the effect of speed of occurrence may not be significant. Cause brain tissue deformation through compression, tension or shearing forces. Primary brain injury leads to direct cellular and tissue injury in which a cell membrane disruption occurs with ion channel dysfunction, blood-brain barrier and vascular disruption, altered autoregulation and local inflammatory reaction. These are the ways by which primary injury leads to brain injury. Secondary injury. Secondary injury is very important because we cannot do anything about primary injury when we can prevent secondary injury which will alter our final outcome. It occurs after hours to days after the initial insult and a major determinant of patient's ultimate neurological outcome, attributable to further cellular damage from the effects of primary injury. Numerous neurochemical mediators which leads to secondary injury includes oxygen free radicals, excitatory amino acids and endogenous opioid peptides, cytokines and other inflammatory agents. Increased metabolism in the injured brain due to increased circulating level of catecholamines from traumatic brain injury induce stimulation of the sympathoadrenomedullary axis and steronergic system. Depression in glucose utilization, increase in extracellular potassium may lead to edema. Decrease in intracellular magnesium may contribute to calcium influx. Leads to neurological degeneration, neuronal degeneration and poor outcome. Secondary injury occurs due to the following events, which includes seizures, delayed hematomas or rebleeds, subarachnoid hemorrhage, vasospasm, hydrocephalus, neuroinfection. Systemic events which can accelerate secondary brain injury includes hypoxia, hypotension, hypercapnia, hyperthermia, hyperglycemia, hypernatremia, hyperosmolarity and infections. All these factors leads to secondary brain injury after primary impact. How can we grade a head injury? We grade head injury according to severity into three categories: mild, moderate and severe. In mild, GCS will be between 13 to 15.
Patient will be complaining of brief loss of consciousness, nausea, cognitive, behavioral and emotional disturbance. In moderate injury, GCS will be between 9 to 12 आफ्टर नॉन सर्जिकल रिससिटेशन। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पेशेंट को इनिशियली एमरजेंसी में रिससिटेट करते हैं, फ्लूइड देते हैं और मेडिसिन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। उसके बाद उसका GCS अगर 9 to 12 हो जाए तो फिर ये कहते हैं हम मॉडरेट इंजरी है। एंड स्वेयर इंजरी इन विच GCS विल बी लेस देन 8 आफ्टर नॉन सर्जिकल रिससिटेशन। अगेन हम उसको रिससिटेट कर दें, उसके बाद GCS जो है अगर 8 से कम हो तो हम कहते हैं ये स्वेयर किस्म की इंजरी है। What are the indications for imaging? ये जो हमारे इमरजेंसी डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। We will go for imaging if patient have loss of consciousness for more than 5 minutes, patient with focal neurological deficits, patient with seizures, a patient with failure of mental status to improve over time in an alcohol intoxicated patient, पेनेट्रेटिंग स्केल इंजरी जिसमें हमें नज़र आता है कि पेनेट्रेट हुआ उसमें हम कराते हैं। साइंस ऑफ अ बेजल और डिप्रेस स्केल फ्रैक्चर, कोई पालपेट करने से हमें फील हो जाए या ब्लैक आइज हो तो उसमें हम करा लेते हैं इमेजिंग। अच्छा, कोगुलेपिथी हो, बंदा कोई एंटीप्लेटलेट्स ले रहा हो, ब्लड थिननेस ले रहा हो, उसमें हम अगर बहुत ज़्यादा इशू नहीं हो फिर भी हम CT स्कैन कराते हैं। प्रीवियस शंट रिलेटेड हाइड्रोसेफलस, अगर पेशेंट का पहले से कोई शंट है ब्रेन में, कोई पहले प्रोसीजर हो, उसमें हम पेशेंट स्टेबल हो तो हम इमेजिंग कराते हैं। इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में भी हम इमेजेस कराते हैं, मतलब एक्सट्रीम ऑफ एजेस में भी अगर GCS अच्छा भी हो तो हमें इमेजिंग करानी चाहिए, एज मोर देन 60 ईयर्स। टाइप्स ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इंजरी इंक्लूड स्कल फ्रैक्चर, सबड्यूरल हेमाटोमास, एपिड्यूरल हेमाटोमास, सबरेक्नाइड हेमाटोमास, cerebral contusions and diffuse axonal injury. Skull fracture results from contact force is usually associated with a brief loss of consciousness. Linear fractures may be linear, may be depressed. Linear fracture usually involves lateral convexities of skull. Depressed fracture usually occurs from blunt force of an object with a small surface area hammer. जिस तरह वो कॉन्टैक्ट एरिया कम होगा तो उसमें ज़्यादा चांस होता है इंजरी डिप्रेस फ्रैक्चर होने की। दिस इज़ अ केस ऑफ डिप्रेस फ्रैक्चर। अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑपरेटेड इन सिटी हॉस्पिटल। ही प्रेजेंटेड टू अस फ्रॉम अस्तोर। बाइक चला रहा था तो ऊपर से पत्थर ने आके सर पर मारा। ये प्री ऑफ उसकी पिक्चर है। And this is a post-op picture of same patient after debridement and duroplasty. इसमें पेशेंट का ड्यूरा भी टीयर था और उसमें कंट्यूजन्स वगैरह भी थी। दिस इज पोस्ट-op पिक्चर। अच्छा, थोड़ा आगे जाने से पहले यहाँ थोड़ा बताओ डिप्रेस फ्रैक्चर में हम ऑपरेट कब करते हैं, उसकी इंडिकेशंस क्या हैं। एक तो आउटर टेबल जो है वो सराउंडिंग इनर टेबल को क्रॉस कर ले, या डिप्रेशन मोर देन 2 सेंटीमीटर हो, अंडरलाइंग कोई हेमाटोमा हो तो उसमें हम ऑपरेट कर लेते हैं। सबड्यूरल हेमाटोमा। सबड्यूरल हेमाटोमा यूजुअली अकर्स इन एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन फोर्सेस। Subdural hematoma occurs secondary to tearing of bridge veins which bridge between the brain and dura mater or sagittal sinuses. Hematoma spreads over the cortical surface with an indural reflection of falx cerebri which prevents expansion of contralateral hemisphere. ये यूजुअली यूनिलेटरल होता है और पूरे हेमिस्फेयर में एक्सपेंड हुआ होता है। ऑफ्टन एसोसिएटेड विद सेरेब्रल कंट्यूजन्स अंडरनीथ। इसमें यूजुअली या तो ब्रिजिंग वेन टीयर होती है या अंडर लाइंग जो ब्रेन होता है डायरेक्ट उसकी इंजरी होती है जिसकी वजह से सबड्यूरल हेमाटोमा बनता है। दिस इज सीटी स्कैन ऑफ सबड्यूरल हेमाटोमा ऑन लेफ्ट साइड with a pressure effect on ipsilateral ventricle and midline shift. Unfortunately, we don't have any post-operative CT scan of subdural hematoma. इसमें इंडिकेशन जो सर्जरी की होती हैं वो डिटेरियोरेटिंग GCS, midline shift more than 10 mm, thickness of subdural hematoma more than 1 centimeter.
which are the indications for emergency surgery. Epidural hematoma. The main cause of epidural hematoma is usually a tear of middle meningeal artery with associated skull fracture. It is usually occurs at areas of temporal and parietal but can occur in front and occipital lobes. Posterior fossa में usually extradural rare होता है, but whenever there will be extradural in the posterior fossa, it will be very much patient will need very much emergent surgical intervention. CT scan में typically it will look like lenticular shape. Next आएगा मैं बताऊंगा. Epidural hematoma is usually uncommon in infants, toddlers because their skull is deformable and not likely to be fractured. उनका जो skull होता है वो deformable होता है जिससे fracture के chance कम होते हैं. Epidural hematoma बच्चों में कम होता है. Uncommon in adults more than 60 years as dura is extremely adherent to skull. इनमें भी ओल्ड एज में भी सबड्यूरल कॉमन होता है, एक्स्ट्राड्यूरल नहीं होता है क्योंकि इनका ड्यूरा जो होता है वो बोन से बहुत ज़्यादा एडहेरेंट होता है. अच्छा, दिस इज अगेन अ केस ऑफ इंट्राऑपरेटिव पिक्चर ऑफ अ केस हु प्रेजेंटेड टू अस विद एपिड्यूरल हेमाटोमा. Patient presented from the Sikardu and we did it in emergency in our hospital. This is intraoperative picture of epidural hematoma. This is a CT scan of same patient. On right side, CT scan shows a parieto-occipital extradural hematoma with a pressure effect, while on the left side, same CT scan post-operatively, which shows alhamdulillah more than 90% of clot removal. Again, indication in epidural hematoma includes volume more than 30 ml, midline shift more than 1 centimeter, 10 millimeter, 10 ml. Subarachnoid hemorrhage. Subarachnoid hemorrhage usually does not require any surgical intervention until it will be spontaneous, and if there is some aneurysm, then we go for surgery. Otherwise, traumatic subarachnoid hematoma usually does not require any surgery. Does not produce a hematoma or mass effect. May cause post-traumatic vasospasm. अब इसके बारे में भी थोड़ी वो है, इत्तेफाक नहीं, इसमें भी वो है जो स्पॉन्टेनियस सबरेक्नाइड हेमरेज होता है उसमें तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं कि पोस्ट ये वेजोस्पाज्म कर, लेकिन ट्रॉमेटिक में सच कहते हैं कि कोई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का रोल नहीं है. दिस इज अ सीटी स्कैन विच शोज सबरेक्नाइड हेमरेज ऑन लेफ्ट साइड. दिस इज अ सबरेक्नाइड हेमरेज. When we compare it with the left side, there is a hyper dense areas on the right cerebral cortex. Cerebral contusions. Cerebral contusions usually again does not require surgery until a volume more than 60 ml or there is pressure effect, then we will go for surgery. Heterogeneous lesions comprising of punctate hemorrhage, edema and necrosis. Usually it occurs in inferior frontal cortex and anterior temporal lobes where the inner table of skull is very irregular. Do evolve over time, may not be seen first CT scan, can cause significant mass effect with herniation, may cause headache, elevated intracranial pressure and coma. This is a CT scan which again shows a small contusion in the midline on left side. In small contusions we does not intervene surgically. Diffuse axonal injury. This is worst form of head injury. We cannot do anything, any intervention. We just put patient on ventilator. We can do tracheostomy, ETT if patient doesn't improve with time.
There will lacerations or punctate continuance and interface between gray and white matters, which are very difficult to detect on simple CT scan. For diffuse axonal injury, to confirm, we will go for MRI, but again it does not alter our course of treatment. In diffuse axonal injury, we just give supportive treatment and wait for patient to recover. Usually caused by a rotational vector of injury. Diffuse axonal injury, common cause of persistent vegetative state or prolonged coma. This is an MRI of diffuse axonal injury. In the arrows, we can see hypointense areas. This shows punctate hemorrhages, which points towards diffuse axonal injury. Post-traumatic seizures usually leads to very grave outcomes. सो अगेन ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात है कि हम एंटी एपिलेप्टिक्स कब तक देंगे, कब तक नहीं देंगे, क्योंकि जब सीजर्स बंदे को हो तो वो फिर बहुत ज़्यादा आउटकम ख़राब होता है. इसमें थोड़ा बताएं रिस्क फैक्टर्स फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक सीजर्स. GCS लेस देन 10, कॉर्टिकल कंट्यूजन, स्कल डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर्स, सबड्यूरल, एपिड्यूरल और इंट्रासेरेब्रल हेमाटोमा, पेनिट्रेटिंग हेड वुंड, सीजर्स विद इन 24 आवर्स ऑफ इंजरी. ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि आपका जो है वो सीजर्स हो सकते हैं और आपकी जो आउटकम है वो पेशेंट का ख़राब हो सकता है. हाउ वी विल मैनेज ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी. इट इंक्लूड्स प्री हॉस्पिटल केयर, एमरजेंसी डिपार्टमेंट केयर, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग, सर्जिकल इंटरवेंशंस एंड मेडिकल मैनेजमेंट. I will touch all categories, but my main focus will be on the medical management, क्योंकि इसी में जो पेशेंट होता है वो मिसमैनेज होता है, इसी में सारे इश्यूज होते हैं. बाकी सर्जरी किस में करनी है ये ऑलमोस्ट हर बंदे को पता और सर्जरी हो भी जाती है. मेडिकल मैनेजमेंट सब कुछ ख़राब होता है. और प्री हॉस्पिटल केयर will include prevention of secondary injuries will be usually our goal, जिसमें we will secure airway by rapid sequence of intubation. Early intubation proper benefit but not prone. अर्ली इंट्यूबेशन के बारे में भी जिस तरह हमारे जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं 11, 12 के, इसमें भी दो थ्योरीज है. कुछ कहते हैं कि अर्ली इंट्यूबेशन करने से आउटकम्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं इससे ICP रेज होता है. अगर बंदा ट्रेन ना हो और उसको पेशेंट को सीडेट या पैरालाइज नहीं करेगा तो उससे कहते हैं फर्दर वो है एटलीस्ट वो एयरवे सिक्योर कर सकता है बाय सिंपल एयरवे सक्शनिंग या ऑक्सीजन से. इस्टेब्लिश नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मोकैप्निया अनलेस न्यूरोलॉजिकल डिटोरेशन डॉक्यूमेंटेड. पेशेंट को हम नॉर्मोकैप्निया ही रखते हैं अनटिल अगर हमें लगे कि बहुत ज़्यादा GCS डाउन हो रहा है और पेशेंट कॉनिंग कर रहा है, फिर हम हाइपर वेंटिलेट करके हाइपोकैप्निया कर सकते हैं, लेकिन वो भी अगेन उसके भी अपने नुकसान हैं. सर्कुलेशन एग्रेसिवली अवॉइड, सर्कुलेशन should be seen aggressively, avoid hypotension, use crystalline fluids, avoid albumin and solutions. इसमें फ्लूइड में अगेन हमें अल्ब्यूमन्स नहीं देने चाहिए, इसमें हमें क्रिस्टलाइड जिसमें नॉर्मल सलाइन जो होता है हमारे पास 0.9% वो टॉप की चॉइस है हेड इंजरी में. सेकेंडरी जो चीज़ है हमारा जो है वो रिंगर लैक्टेट है जो आइस्टोनिक फ्लूइड है. इसमें एक और बात है कि हमें डेक्सट्रोस सलाइन और डेक्सट्रोस वाटर जो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो हाइपोटोनिक होता है जिससे हमारा एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड ज़्यादा होगा और ब्रेन एडिमा डेवलप करता है. और प्रोटेक्ट सी स्पाइन, ये सी स्पाइन के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा क्योंकि ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली मिसमैनेज पार्ट होता है. व्हेन पेशेंट प्रेजेंट टू अस विद डिक्रीज GCS, हम बॉदर ही नहीं करते हैं सर्वाइकल स्पाइन देखने के लिए. हमने पेशेंट को उल्टाया, सीधा किया और CT स्कैन के लिए भिजवाया. और एमरजेंसी में जो अगर बंदे को है काम करने वाला, जो भी पेशेंट आएगा अगर उसका GCS डाउन है और वो नहीं आपके कमांड्स को फॉलो करता है तो CT ब्रेन के साथ सी स्पाइन जो है वो ट्रॉमा का एक पार्ट है. अच्छे सेंटर्स में CT ब्रेन के साथ CT स्पाइन भी कराते हैं. तो ये एमरजेंसी में ही होना चाहिए अगर पेशेंट जो है आपको ओरिएंटेड नहीं और नहीं बता सकता है. एंड टाइमली ट्रांसपोर्ट टू अ न्यूरोसर्जिकल यूनिट. एमरजेंसी डिपार्टमेंट केयर,
emergency department where we should orient our management on ATLS protocols, which is the abbreviation of Advanced Trauma Life Support. मुझे जब कॉल आती है हॉस्पिटल से, मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि उनका चेस्ट एब्डोमेन या और चीज़ें उनकी ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पहले चेस्ट और एब्डोमेन देखना है। सब ड्यूरल भी हो तो हम 10 घंटे बाद भी सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन जो इमीडिएट थ्रेटिंग होती है लाइफ के लिए, जिसमें आपका हीमोथोरैक्स है या चेस्ट इंजरीज है, फ्लाइल चेस्ट है, खुदा न खास कोई एब्डोमिनल विजर रप्चर होती है, वेसल रप्चर होती है, वो ज़्यादा इमरजेंसी है। हेड इंजरी ज़्यादा इमरजेंसी नहीं, इस पर भी मरीज़ मिसमैनेज होता है। और स्पेशली मैं एबटाबाद में भी जब हम लोग थे, जब ट्रेनिंग कर रहा था, तो कई दफ़ा हमसे वो एब्डोमेन और चेस्ट मिस होती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिस तरह ATLS का प्रोटोकॉल है, हम एयर वे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, और 4th नंबर पे जाके आपकी डिसेबिलिटी, आपका फोकल जो न्यूरोलॉजिकल है वो आ जाती है। फोकल न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट विच इंक्लूड्स GCS, प्यूपल एक्सटेंट ऑफ एक्सट्रीमी मूवमेंट। जब पेशेंट हमारी कमांड फॉलो नहीं करा तो फिर हम उसको पेन देते हैं। अगर उसकी लिम्स मूवमेंट है चारों की, तो इसका मीन ये होता है कि उसको सर्वाइकल या कोई और स्पाइन की इंजरी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिन हेड फॉर हीमोटेम्पेनम, पीरीऑर्बिटल और मेस्टाइड एकाइमोसिस, CSF, रानोरिया, ऑटोरिया। If patient is hemodynamically stable, then we will go for CT scan. Again इसमें जो important बात है, अगर patient hemodynamically unstable नहीं है तो आपने नहीं कराना है CT scan. You have to inform general surgeon, thoracic surgeon. अगर पेशेंट हेमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है तो आपने CT स्कैन के लिए नहीं भिजवाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हेमोडायनेमिकली वो स्टेबल होगा तब CT स्कैन के लिए भिजवाएंगे, क्योंकि सब ड्यूरल, एक्स्ट्रा ड्यूरल या कोई ब्रेन इंजरीज है, पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस खुदा न खास कोई बहुत प्रीफरी से कोई पेशेंट आया हो जिसका स्काप इंजरीज हो, तो ये एक चीज़ है जिससे पेशेंट का BP ड्रॉप करता है। बाकी एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल से पेशेंट का BP कभी कम नहीं होता है। इसलिए CT स्कैन कराने से पहले उसको हीमोडायनेमिकली स्टेबल करना इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपका जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट आता होता है वो ATLS में 4th नंबर पे आता है। उससे पहले सर्कुलेशन, ब्रीदिंग और एयर वे को आपने सिक्योर करके उसके बाद करना है। इफ पेशेंट इज हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल देन यू विल कॉल ट्रॉमा सर्जन, जनरल सर्जन और थोरेसिक सर्जन फॉर लेप्रोटमी एंड थोरैकोटमी। अच्छा, स्टिल आपके पास जनरल सर्जन भी आता है और वो लेप्रोटमी भी करता है, लेकिन लेटरलाइजिंग साइन होते हैं। कोई एक साइड का फिक्स डायलेटेड प्यूपल होता है, कोई एक साइड की एक वीकनेस होती है। देन वी कैन गो फॉर डायग्नोस्टिक बर होल्स विद ए जनरल सर्जन। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, इसमें किस में हम सर्जरी कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते, बेसिकली इस पे बात कर रहा है। डिटरमाइंड बाय लीजन्स, एक्स्ट्रा ड्यूरल है, सब ड्यूरल है, डिप्रेस फ्रैक्चर है, कंट्यूजन है, या सबरेकनाइड हेमरेज है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि सबरेकनाइड हेमरेज और डिफ्यूज एक्सानल इंजरी ट्रॉमेटिक जो होती है उसमें हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ सपोर्टिव जो है वो केयर देते हैं। अगेन एक्स्ट्रा ड्यूरल अगर मोर देन 35 ml हो, मिड लाइन शिफ्ट मोर देन 10 mm हो, पेशेंट GCS डिटेरिएट कर रहा हो, पोस्टीरियर फोसा का हो, टेम्पोरल एक्स्ट्रा ड्यूरल हो जिसमें हमें हर्निएशन का खतरा हो, अंकल हर्निएशन, क्योंकि चूँकि साथ में मिड ब्रेन होता है टेम्पोरल लॉब के साथ, इसमें ज़रा हम पहले करते हैं, वरना हम वो करते हैं। स्मॉल हो में हेमाटोमस यूजुअली ऑब्जर्व लेस देन 10 mm। हेमाटोमस कंट्यूजन इन्वॉल्विंग मिडिल क्रेनियल फोसा आर एट हाई रिस्क ऑफ कोनिंग, क्योंकि ये कैन काज हर्निएशन विदाउट राइज इन ICP। मतलब इट मीन्स दैट विदाउट डिटेरिएटिंग GCS पेशेंट कैन गो कोनिंग। तो इसलिए मिडिल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में भी छोटा हेमाटोमा को हमें वो करना चाहिए, एवेक्यूएट करना चाहिए। पेनिट्रेटिंग ब्रेन इंजरीज लाइक बुलेट्स, मैसिव डिस्ट्रक्शन, नाइव्स, मिनिमल मास इफेक्ट बट हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन CSF लीक। इसमें हमें एंटीबायोटिक की कवरेज अच्छी देनी चाहिए और डेफिनेटली जब ड्यूरा क्रॉस हो तो हमें डिब्राइडमेंट करके वॉश करके एक ड्यूरोप्लास्ट लाजमी करनी चाहिए। फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारे ICU में जो लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट प्री ऑप हो या पोस्ट ऑप हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टेंटर मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड पल्स इन्वेसिव प्रेशर मॉनिटरिंग, उसमें हम आर्टेरियल लाइन डालते हैं। ICP मॉनिटरिंग मैंडेटरी फॉर स्वेयर ब्रेन इंजरीज, जिसका GCS लेस देन 9 हो उसमें हमें ICP मॉनिटरिंग जो करनी वो मैंडेटरी है। या
plus abnormal CT scans as intracranial hypertension develops in 60% patients. अब ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर हम मॉनिटर किस तरह करते हैं, हम EVD करके उसमें हम ICP मॉनिटर कर सकते हैं, और इसके अलावा ICP कैथेटर्स मिलती हैं हमें, उससे भी करते हैं। लेकिन इसमें जो समझने की बात यह है कि वो लिटरेचर में ये लिखा गया है कि आप पेशेंट का सीरियल GCS करते हैं वो और इसके जो इन्वेसिव मॉनिटरिंग है ICP के, ये कंपेरेबल हैं। तो यूजुअली पूरी दुनिया में स्पेशली पाकिस्तान में हम GCS से ही ICP मॉनिटर करते हैं, इन्वेसिव के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि उसके अपने ड्रॉबैक्स हैं। वो बहुत ज़्यादा ICP कैथेटर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और वो फिर आप ब्रेन के अंदर जब जाते हैं तो इन्वेसिव में इन्फेक्शन का चांस होता है। एक्सटर्नल वेंट्रिकल ड्रेन्स एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड कोडमैन ये कोई कंपनी का नाम है, इसके वो ICP कैथेटर्स होते हैं जिससे हम इन्वेसिव करते हैं। लेकिन इन्वेसिव पूरी दुनिया में बहुत कम होता है, स्पेशली कुछ लोग जो होते हैं वो आगे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज में फेलोशिप करते हैं, वो करते हैं। बाकी हम GCS और सीरियल CT स्कैन्स अकॉर्डिंग टू GCS हम ICP मॉनिटर करते हैं। बाकी क्लिनिकली हम ब्लड प्रेशर और उसका हार्ट रेट और रेस्पायरेशन से भी, जिस तरह कुशिंग ट्रायल होता है उससे भी हम ICP को देख सकते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन इन evacuation of mass lesions, decompressive cranectomy. We will do decompressive cranectomy usually for subdural hematomas या malignant intracranial hypertensions, जिसमें या तो हम हेमिक्रेनेक्टमी करते हैं एक साइड का, जहाँ हम बाइफ्रंटल डिकम्प्रेसिव क्रेनेक्टमी करते हैं। लेकिन सिंपल जो इंट्राक्रेनियल मैलिग्नेंट इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है विदाउट एनी मास लीजन्स या डिफ्यूज एंजाइना इंजरी में, स्टिल इट्स बेनिफिट्स आर डाउटफुल। द डेक्रा स्टडी शोड हार्म विद अर्ली एग्रेसिव डिकम्प्रेशन, इसमें भी अर्ली डिकम्प्रेशन से नुकसानात हैं। medical management is very much important, as I have already mentioned. Medical management में resuscitation में we have to avoid hypoxia by titrated FiO2. We can increase PEEP up to 50 centimeter of water in head injury patient, special patient वेंट पावर उसकी सैचुरेशन मेंटेन नहीं करता, हम PEEP इंक्रीज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करेंगे तो वो ICP फिर रेस करता है, उससे नीचे रेस नहीं करता, तो हम PEEP जो है वो वेंट में 15 सेंटीमीटर तक कर सकते हैं। और वी शुड अवॉइड हाइपोटेंशन एंड हाइपोवॉल्यूमिया, यूज सलाइन्स एंड अवॉइड एल्ब्यूमिन, यूज वेजोप्रेसर्स, इवन नॉरएपिनेफ्रिन तक हम यूज़ कर सकते हैं BP को मेंटेन करने के लिए। इनिशियली हम क्रिस्टलाइट आइस्टोनिक फ्लूइड्स देते हैं, अगर ना हो तो फिर हम वेजोप्रेसर्स यूज़ करते हैं। ट्रीट एनीमिया, पेशेंट आई हेड इंजरी का सबसे पहले we should go for CBC. If HbR HCT is less than, we should transfuse blood. एनीमिया ट्रीट होगा तो हाइपोक्सिया के हाइपोटेंशन और हाइपोवॉल्यूमिया अगेन हाइपोक्सिया के भी चांसेस कम होंगे। अच्छा, मेडिकल मैनेजमेंट की ये कंटिन्यूएशन है। बेसिकली दिस इज अ मेडिकल मैनेजमेंट फॉर रेज इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन आफ्टर सर्जरी और विदाउट सर्जरी। अवॉइड इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, सस्टेन ICP मोर देन 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी काजेज इस्कीमिया। हेड इंजरी के बाद अगर पेशेंट को इस्कीमिक इवेंट हुआ तो फिर वो पेशेंट या तो वेजिटेटिव स्टेट में जाता है या वो एक्सपायर होता है। इसलिए हमें ICP हर सूरत में हमें ICP जो है वो उसको लेस देन 20 मिलीग्राम ऑफ मर्करी रखना चाहिए। मेंटेन सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर ऑफ 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो होगा हमारा हर सूरत में 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा होना चाहिए। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, मीन आर्टीरियल प्रेशर निकाल लेते हैं और उससे हम माइनस करते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जो हमारा आंसर आएगा वो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर होगा विच मस्ट बी मोर देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अगर हम सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर 60 ज़्यादा करते हैं तो ARDS का चांस होता है, लेकिन होता है तो हमें 60 और 70 के बीच में होना चाहिए हमारा सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है। लोअर प्रोड्यूसेस ए फॉल इन ब्रेन टिश्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विच अगेन विल लीड टू इस्कीमिया। ICP रेस करने के जो हमारा जो फर्स्ट टायर जो हमारी ट्रीटमेंट होती है हेड अप 30 डिग्रीज पोजीशन, सीडेशन एंड एनाल्जेसिया हम देते हैं। जिस तरह हम एमरजेंसी वो मेडाजोलाम लगाते हैं या डोर्मिकाम या हम सेरिनेल लगाते हैं। पेशेंट अगर एजिटेटेड भी होगा तो उसका ICP रेस होता है, तो इसलिए हमें सीडेट करना लाए और साथ में अच्छे एनाल्जेसिया देना चाहिए।
अगर इससे नहीं हो तो वी कैन गिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट। जाहिर बात है जब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट हम देंगे तो फिर हमें पेशेंट को वेंट पे डालना पड़ेगा आईसीपी कंट्रोल करने के लिए, विच विल हैव टू कंट्रोल आईसीपी, बट इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ न्यूमोनिया एंड क्रिटिकल इलनेस पॉलीन्यूरोपैथी। पेशेंट लंबे अरसे तक वेंट पे रहेगा तो डेफिनेटली दिल विल बी अ रिस्क ऑफ न्यूमोनिया एंड पॉलीन्यूरोपैथी। To reduce ICP we can put EVD and we will drain CSF to reduce ICP, but again I have mentioned earlier ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, ऊपर वाले प्रोसीजर से आमतौर पे हमारा ICP जो होता है वो कंट्रोल होता है। माइल्ड हाइपर वेंटिलेशन टू मेंटेन नॉर्मोकार्बिया। अच्छा, ये हाइपर वेंटिलेशन के बारे में एनेस्थीसिया वाला कोई नहीं है, लेकिन ये भी बड़े उससे करते हैं। आपका एंड टाइडल जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 35 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम नहीं होना चाहिए। आप हाइपर वेंटिलेशन करते हैं तो उसमें आपका आईसीपी तो कम होता है, लेकिन वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है विच कैन लीड टू सेकेंडरी इस्कीमिक इंजरीज टू द ब्रेन। इसलिए हमारी जो हाइपर वेंटिलेशन है वो भी बड़ा एक्सपर्ट बंदा और बड़े कंट्रोल तरीके से करेगा। एम फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी 35 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अच्छा, फर्स्ट टायर से हमारा अगर आईसीपी कंट्रोल है तो हम फिर सेकंड टायर की तरफ जाते हैं जिसमें हमारी ऑस्मोथेरेपीज हैं विच इंक्लूड्स मैनेटोल। द डोज ऑफ मैनेटोल जो है वो 0.25 ग्राम टू 1 ग्राम पर केजी है और हमको इसको 3 ले लेते हैं। अच्छा, मैनेटोल हम भी ज़रा गलत तरीके से देखते हैं। आइस दिल्ली वैसे मैनेटोल को बोलसिस में दे देते हैं, इसको बोलसिस में देना चाहिए, हम तो यहाँ पे टीडीएस या बीडी लिखते हैं। दूसरा ये कि मैनेटोल देने के लिए बीपी जो होता है वो सिस्टोलिक 90 से ज़्यादा होना चाहिए, वरना मैनेटोल नहीं देना है। अगेन बीपी कम होगा फिर इस्कीमिक इंजरीज होगी। स्पेशल इमरजेंसी में बाज़ औक़ात ये होता है कि पेशेंट आता है तो मैनेटोल देते हैं, सीटी स्कैन नहीं कराते हैं। सीटी स्कैन न कराने से पहले मैनेटोल नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा होगा या खुदा ना कर कॉनिक सब ड्यूरल हेमाटोमा हो तो वो फिर मैनेटोल के बाद एक्सपेंड करेगा। लेकिन आपके पास अगर न्यूरो सर्जन है तो आप दे सकते हैं, लेकिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगेन 90 से ज़्यादा होना चाहिए तब मैनेटोल देना, वरना मैनेटोल जो होता है फर्दर मसला करता है। और मैनेटोल फिर 72 आवर्स बाद हम टेपर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये रीबाउंड एडिमा शुरू हो जाता है। बेसिकली मैनेटोल हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है वो बंद कर देता है। अच्छा, मैनेटोल से जो अच्छी चीज़ है वो हाइपरटोनिक सलाइन है, 30% है, 3% है, जो हम 3 ml पर केज देते हैं ओवर 10 मिनट्स, और 10 to 12 ml 20% सलाइन देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है, इसको फार्मासिस्ट बनाता है, फिर इसकी बहुत कम लाइफ होती है जिसमें ये ख़राब होता है। इसके बहुत एडवांटेज है मैनेटोल के ऊपर, ये अच्छा भी है। और दूसरा ये आप जो टेंसिव पेशेंट होते हैं उसमें भी दे देते हैं, तो इसके 2 एडवांटेज होते हैं। आपका जो हेमोडायनेमिकली भी पेशेंट स्टेबल होता है और दूसरा ब्रेन एडिमा भी कम करता है। लेकिन अगेन ये बहुत अच्छे सेंटर में होता है, ये हाइपरटोनिक सलाइन यूजुअली अवेलेबल नहीं होता है। अच्छा, फाइनल टायर जब हम सब कुछ करते हैं, पेशेंट का आईसीपी कम नहीं होता है, फिर बारबिटूरेट कोमा पे हम बारबिटूरेट सब पेशेंट को दे देते हैं। वो डिक्रीज सेरेब्रल मेटाबॉलिज्म रेट बट कैन कॉज हाइपोटेंशन एंड हैज़ लॉन्ग हाफ लाइफ। वो दे दे तो वो मेटाबॉलिज्म कम करता है, आईसीपी कम करता है, लेकिन एक तो उससे हाइपोटेंशन हो सकती है, दूसरा इसकी हाफ लाइफ बहुत लंबी होती है, तो हम जल्दी जीसीएस नहीं कर सकते हैं। थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया, ये भी किसी ज़माने में बहुत इस पर बड़ी रिसर्च हो गई थी कि हाइपोथर्मिया जो है वो अगेन ब्रेन मेटाबॉलिज्म को कम करता है और आईसीपी को कम करता है, लेकिन अभी भी इसके बहुत सारे इसमें भी कंट्रोवर्सी आ गई। बाकी बहरहाल हमारा पेशेंट जो होगा वो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। लोअर आईसीपी बट नॉट शोन टू चेंज आउटकम। पोलर स्टडीज करंटली इन प्रोग्रेस, एक स्टडी अभी प्रोग्रेस में। बाकी ये आईसीपी तो लो हमारा कम करता है, लेकिन आउटकम फाइनल चेंज करता ही नहीं करता, इसके बारे में कोई फाइनल नहीं। लेकिन अभी कुछ स्टडीज इस तरह भी है जिसमें कहते हैं कि हाइपोथर्मिया को हमें अवॉइड करना चाहिए। एग्रेसिव हाइपर वेंटिलेशन आई हैव डिस्कस अर्लियर, it can lead to cerebral vasoconstriction and can lead to secondary brain ischemia, so it should be applied very carefully by an expert person. We can use it in rescue situations. हमें क्लिनिकली लग रहा है पेशेंट बस कोनिंग कर रहा है, मरने वाला है, बहुत वो है, तो उसमें हम फिर एग्रेसिव हाइपर वेंटिलेशन भी करते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम डिकम्प्रेसिव क्रेनिएक्टमी कर सकते हैं।
पेशेंट का हमारा आईसीपी रेज नहीं होती है, एज आई हैव मेंशन, उसमें हेमिक्रेनेक्टमी होती है या बायफ्रंटल क्रेनेक्टमी होती है। लंबर से सब ड्रेनेज से हम आईसीपी कम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई मास इफेक्ट नहीं होना चाहिए ब्रेन में, तब हम लंबर से सब ड्रेनेज कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट की उसी की कंडीशन, अवॉइड हाइपरथर्मिया, इंक्रीज इन न्यूरॉनल दैट व्हेन टेम्परेचर इज मोर देन 39 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स। मैं आईसीयू में हमारे जो स्टाफ है उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि टेम्परेचर जो है पेशेंट का कंट्रोल होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी और पेशेंट को ब्रेन इंजरी का वो होता है। एग्रेसिवली कूल पेशेंट इफ टेम्परेचर मोर देन 39 सेंटीमीटर, जिसमें हम फोलिस पास करते हैं, नोमान और एनजी पास करते हैं, उसमें हम पानी डाल लेते हैं। शीजर प्रोफाइलेक्सिस पेनिटोइन एंड लेविट्राइस्टेम ड्यूरिंग फर्स्ट 7 डेज बट जनरली ऑन मिडाजोलम एंड प्रोपोफॉल। अच्छा, इसमें भी जो है वो आमतौर पे ये कहा है कि हेड इंजरी के बाद 7 डेज के बाद जो हम देते हैं एंटी एपिलेप्टिक, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन जो पेनेट्रेटिंग ब्रेन इंजरीज होती हैं या जो हेमाटोमास होते हैं उसमें हम फिर दे देते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट, सपोर्टिव केयर एंड मॉनिटरिंग, जिसमें डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस है, टेट्स है, कैन यूज लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन एंड यूएफएम विद इन 2 to 3 days ऑफ न्यूरो ऑफ इंजरी आफ्टर डिस्कशन विद न्यूरो सर्जन। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले किसी ज़माने में कहते थे कि 72 आवर्स के बाद एनजी पास करके फीड शुरू कराना चाहिए, लेकिन अभी कहते हैं विद इन 24 आवर एनजी पास करके फीड शुरू करना चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट की उसमें हेड इंजरी में। और कहते हैं कि 1 वीक तक हमें मैक्सिमम जो है उसका जो मैक्सिमम हम न्यूट्रिशन कर सकते हैं उस तक पहुंचना चाहिए। सिडेशन परमिट्स मैनिपुलेशन ऑफ वेंटिलेशन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट, सेरिब्रल ब्लड फ्लो एंड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। मैं आज ऑलरेडी पहले कह चुका हूँ, अगर आईसीपी रेज ना हो तो हमें सिडेट करके हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। सिडेशन आल्सो प्रोवाइड एंजियोलाइसिस ट्रीटमेंट फॉर विड्रॉल सिंड्रोम्स एंड सीजर कंट्रोल। इससे सीजर भी हमारे कंट्रोल होते हैं, अगर हम ना हो तो हम अगर वेंट पे डाल दें तो सीजर हमारे कंट्रोल होते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन जैसे आपने लास्ट वर्ड यूज किया सीजर,